Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Popcord. This is our 26th episode, and this is the first episode that I'm splitting into two different parts, just because the conversation became so vast and so passionate that we had to split it up into two different pieces. So the first piece, the first part, is basically the meat and bones of our conversation. We discuss controversies around video gaming, starting with a very famous video game controversial incident that happened in 2009 within the game Modern Warfare 2 called No Russian. We also discuss other controversies, freedom of speech, outrage culture, we discuss all of that. So it's a very passionate conversation that took place. The second part is more lighthearted. It features our main guest. We talk a little bit about him and his YouTube show. We discuss video games in general and the overall gaming scene in Pakistan. So both of these parts have three guests. Our main guest is Buntoo Cage. His real name is Soban. He's 20 years old from Lahore. And he runs a show called The Too Sweet Show on YouTube and Facebook. And Buntoo will talk more about himself in part B. The second guest is Noor from Karachi, and she's been on some of our previous episodes as well, including the Halloween one. And the third guest is Saif from the UK, and he was in our London episode. A little disclaimer, there is some swearing and cursing, more so than a lot of our previous episodes in this one. We have actually censored out the more extreme swears, but there is some swearing, so just keep that in mind. Also, a brief trigger warning, there is some shooting sound effects being used from a video game, just for setting the stage for a scene, so watch out for that. A lot of controversial opinions are discussed. Keep that in mind as well, something that not everybody will agree with, but it's an open platform. We've invited various people in the past as well with differing opinions. It's always great to get a variety of opinions from people, especially Pakistani people, to add their voice to these types of topics. So hope you enjoy it. Here's our first part. But are they going to include the No Russian mission? Yeah, that's actually a good thing to discuss right now. होना चाहिए. Habib, do you remember the No Russian mission from? Yes. Exactly. तब बहुत controversy हुई थी. हालांकि तब इतना controversial time नहीं था video games के लिए. Exactly. That's why I said it's probably a good thing to discuss. So most enthusiastic gamers will know about the No Russian mission, but for those that don't know, No Russian is a level from a video game called Call of Duty Modern Warfare 2, which came out in 2009. What happens during this incident is a group of mass shooters enter an airport in Russia and begin shooting and killing everybody in the airport. Innocent people, of course. The shock factor is that you, as a game player, are controlling one of those shooters. You are basically you're going down a lift and you have these like four people. And your mission is to basically slaughter it's an airport, right? Yeah, it's based on the map. Yeah, so. And something like this had never been done before, where you are actually in charge of and being told to kill innocent people in a video game. You go out of the elevator and you literally shoot like anyone inside. The scene starts in an elevator. You're going down with a group of other killers. Everybody's holding a gun. And before coming out of the elevator, the group's leader tells you this. Remember, no Russian. क्योंकि आपको ना आपके upper level officer से orders आ रहे होते हैं, ठीक है? Yeah, exactly. Orders में वो command करता है and remembers no Russians. And that's how the level gets its name, No Russian. The meaning behind this is to not speak Russian, so you do not expose yourself. And that's part of the storyline of the video game. And after that, the shooting starts. जैसे लिफ्ट के दरवाजे को आप अन्नी पा देते कुत्तों की तरह गोलियां ठा 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 फुल. It's very disturbing to watch. It's kind of intense, actually, for me personally, to watch this now, 10 years after the level came out. And it's an airport full of innocent people, of course. पूरा एयरपोर्ट पे जब मासूम बंदे मर रहे हैं, हाँ, तो वो मतलब कि उस टाइम पे भी देख के बड़ा दिल अपना ऊपर नीचे हो गया था यार, ये क्या करवा रही है बंदो. Yeah, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, right? देख के भी, हालांकि it's a video game. Yeah, I think उस time पे भी they were intelligent enough to basically, or smart enough, I suppose, to basically put in a filter in the game, so you could actually filter that mission out. Yes, there was a skip option. मेरे ख्याल में that mission is what made MW2
स्टैंड आउट, क्योंकि वो मिशन बहुत खतरनाक था यार, मतलब आपको बड़े गट्स चाहिए टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट। Wait, which game? Sorry, दिमाग एकदम से- Modern Warfare मॉडर्न 2. वॉरफेयर 2। Modern Warfare 2, the mission, no Russian. It was mostly shock I value remember though. my brother playing it. Like in लेकिन इन द एंड ऑफ द डे, ना बात पता है क्या है, देखो गेम थी, शुगर लग गया, बंद कर दी, खत्म हुआ। There was a different time as well though. Like people actually, used to play games for the sake of playing games, even though it wasn't that long ago. Yeah. तब इतना ज़्यादा outrage culture नहीं था. Now, like, you have to be It really was- अब careful. तो यार किसी को बाहर चीख भी मार दो, उसकी भी हेडलाइन बन जाएगी कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। Yeah. Now going back to no Russian. No Russian actually मैं अभी देख रहा हूँ Google पे. इसके ऊपर पूरा article लिखा हुआ है लोगों ने Wikipedia पे. So it's actually a pretty big deal. So you can Google no Russian and you find some information about that. तो मुझे ये याद है what Saif said. That's true. You're going down the elevator. So मुझे actually मैं ना नहीं पता था what no Russian means in that context. What it means is basically you're not supposed to speak Russian. Otherwise they'll find out that you're Yep. Russian terrorists. So वैसे अगर सोचा जाए, real life terrorism is very similar to like real life जो operations होते हैं आजकल दुनिया में. हम्म, A lot of it is very similar Oh, to. The whole But trilogy the was based shocking on- thing, the whole shocking thing I think in this was basically you have the gun in your hands, so you are basically acting like a terrorist, and that was a controversial thing. You have to do it basically. Yeah. Yeah. अब ये बात आती है कि and you guys can discuss this. One of the big questions is, does video games, along with other things, incite violence or promote violence? ये ऐसा ज़माना था, I think when the game came out 2008 or something, Mhm. that it really wasn't that big of a deal. And even prior to that, I used to like watch, super R-rated movies growing up as a kid. अच्छी नहीं होती थी लेकिन खून खराबा वगैरह देख लिया, कभी ऐसा दिल नहीं किया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खेल ली, कभी ऐसा मेरा कोई दिल नहीं किया कि यार मैं भी जब बाहर जाके बंदे का दरवाजा खोल के ना गाड़ी का वही उसको ना। बाहर फेंक दूं और उसमें- गाड़ी चोरी करके ये काम करना शुरू कर दूं. बिल्कुल। अभी भाई वो बड़ी सीधी सी बात है, जैसे आपने काफी ज्यादा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया ना बात में। आपने पहले ये कह दिया कि वीडियो गेम्स है, साथ ही आपने कह दिया आई आल्सो यूज्ड टू वॉच आर-रेटेड फिल्म्स व्हाइल ग्रोइंग अप। तो देखो जब से बंदा आता है दुनिया में, ठीक है, सारे टीवी देखते हैं, सारे मीडिया देखते हैं, वो बड़ा होता है, वो दुनिया में भी बगैरती देखता है, वो टीवी पे भी बगैरती देखता है, वो बुक्स में भी देखता है, वो वायलेंस को न्यूज पे भी देखता है, मूवीज में भी देखता है, अगर वो गेम खेलता है तो गेम में भी देखता है, लेकिन नॉट मोस्ट ऑफ देम डू दैट शिट इन रियल लाइफ। तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई स्पेसिफिक चीज इंसान को ट्रिगर करती है ये करने पे। There's a lot of factors I think in the equation. That's the hard part. No, I kind of think the same thing. It's like the factors that factor into it are like way too many to just like point it to like one like specific medium. It could be like something in real life, like bringing like how the person was brought up and stuff. हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है वाकई। Like some people are just messed up. You can't really do anything about it, to be honest. So I mean, if they're treating like games as in like escapism, and they end up doing something like that, I don't think you can really blame gaming, to be honest, because maybe they are getting ideas. Like I can't deny that. Like maybe they get ideas from it, हाँ आइडियाज तो मिल सकते हैं, but they don't do it. They can't really like do stuff because of it. I mean, ideas are a different thing. You can get ideas from anything, right? और इस तरह की चीजें असल में भी हो चुकी है ना, जिस तरह हैवी मेटल को बहुत ज्यादा बैश किया जाता था कि जी दिस म्यूजिक ये प्रोवोक करता है कि बंदे शिंदे मारे, एंड इन द कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग इंसिडेंट दैट टुक प्लेस, उसमें बहुत लोग मरे थे और जिन्होंने मारा था वो रैमस्टाइन के बहुत बड़े फैंस थे, मार्लिन मैनसन के बहुत बड़े फैन थे, एंड मार्लिन मैनसन को पकड़ लिया गया था थोड़ी देर के लिए कि भाई तेरी वजह से एंड ऑल दैट। हालांकि मैंने बहुत रैमस्टाइन सुना है growing up. हाँ रैमस्टाइन तो मैं भी बड़ा सुनता हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कभी किसी को जान से नहीं मारा, ना कभी नियत हुई है, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना। तो वो मेरे ख्याल में कि एज अ होल जो है ना, एक आदि वाकये को लेके एज अ होल लेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चवलपन आता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं उसी कम्युनिटी को, उसी चीज को जो फॉलो करते हैं। लोग सिंप्लीफाई बहुत कर देते हैं ना, they think it's very simple to figure out what caused something. It's easy to blame something, basically. हाँ अभी देखो सीधी सी बात है, टेड बंडी ने इतने बंदे मारे, उसने कभी मेरे नहीं ख्याल में जीटीए खेली होगी, ना कोई गेम खेली होगी। उसामा बिन लादेन ने कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेली। Yeah, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये recently, I guess 2012 में, I was living very close to the Sandy Hook school. इधर शूटिंग हुई थी, वो बंदा एलिमेंट्री स्कूल में जाके ना उसने 10 साल के बच्चों को, 20 बच्चे and 5 teachers, he shot them dead. ये अमेरिका में हुआ और मैं उधर से आधा घंटा दूर रहता था। तो फिर क्या हुआ कि they started an investigation on to why he did that, and he committed suicide too. And
what they found was he played a lot of violent video games, including Doom, Quake, पता नहीं क्या-क्या, a lot of first-person shooters. नहीं, लेकिन वो एक बंदे की जो बात है ना, वो एज़ अ होल नहीं जस्टिफाई करती पूरी हाँ, वो उधर ही मैं जा रहा हूँ. तो games, music, all that stuff, he was socially isolated. वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता था लोगों के साथ. वो सारी चीज़ें उन्होंने देख के, लेकिन खुसूसी बात ये है कि वो लड़का गोरा था. मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अगर कोई मुसलमान हो ना, जो होता है कई बार, तो वो शूटर पकड़ that will लेता है। easily like go to terrorism straight away. They wouldn't even like Exactly. they wouldn't even look into that. Like बड़ा सिंपल आंसर होता है. लेकिन जब गोरा करे then they have to figure out यार ये क्या कर रहा है. वो बात सर ये है ना कि गोरा करे तो मेंटली अनस्टेबल या वीडियो गेम आने या म्यूजिक जे मुसलमान करे तो जी इस्लाम से खांदा है, अल्लाह माफ करे। वो बगैरती करता है अमेरिका यार, सरेआम बगैरती करता है। अब तो उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बगैरत है। काले को उन्होंने मारना है, मुसलमान को उन्होंने मारना है। जिधर से आपका स्किन कलर डार्क होना शुरू हुआ उससे तनु गोली पै जाए। बहुत सिंपलीफाई कर देते हैं, राइट। और हम अभी जो बातें कर रहे हैं, हम दोनों साइडों को डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वी आर आल्सो डिफेंडिंग वीडियो गेम्स, वी आर आल्सो डिफेंडिंग हेवी मेटल, आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट। बल्कि यार देखो, अभी हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जनरली हम सही बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि यही बात सही है यार। Yeah, you can really not simplify anything down too much. आजकल का कल्चर ही ऐसा बन गया कि people just want something to blame all the time. हर बंदे को आवाज मिल गई है, हर बंदा ट्विटर पे जा सकता है, हर बंदा can start a march or outrage or whatever. बस ऐसे ही है। वो वाइल्ड वेस्ट बहुत अच्छा था। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जिदा पसंद आया उन्हें गोली मारो, ये नहीं पसंद आया वो असली वीडियो गेम थी। वो थी, it wasn't virtual reality, it was reality. तो वो लग गेम थी वो basically. जो बात है, ये एक क्रिटिसिज्म है वीडियो गेम का, which is pretty common nowadays, I think. उसके अलावा बस ये होता है कि अब Buntoo, the type of work you're doing, right? Having a show or dedicating your time to video games, ये भी आजकल के I think पाकिस्तानी सोसाइटी में आप बात बेहतर कर सकते हो कि इसको लोग कैसे रिसीव करते हैं। Do you get pressured at all to pursue something different? कि आप अपना टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या सीन है कि देखो, मेरी फैमिली ने मुझे कभी रोका नहीं है वीडियो गेम्स खेलने से, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा सा, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मेरे तो पैदा होने से पहले की घर में गेमें थी। माय ब्रदर्स वर प्लेइंग इट। बाबा खुद गेम्स ला के देते थे उनको, ठीक है? उनको गेम में गिफ्ट भी मिलती थी। आई रिमेंबर कि मॉर्टल कॉम्बैट कितनी खतरनाक गेम है और मैं उससे इतना ऑब्सेस्ड हूँ। और वो बिफोर माय बर्थ मेरे भाइयों को बाबा ने मॉर्टल कॉम्बैट 2 ऑफिस से वापसी पे ला के दी थी एज अ गिफ्ट। तो मुझे तो फैमिली ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑल्दो वीडियो गेम्स आर लुक्ड अपॉन इन दिस सोसाइटी। जिस तरह लेट्स से कि मेरी कजिन्स हैं, मेरी दूसरी फैमिली वाला पार्ट है, फूफा है, फूफू हैं, अंकल्स, आंट्स एंड ऑल, दे वुड लुक डाउन अपॉन गेम्स के। वो कहेंगे गेम में कौन खेलता है, गेम में तो फजूल है, गेम में क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ टाइम ज़ाया होता है आपका। और फिर एक और स्टूपिड बात है बहुत ज्यादा कि लड़की क्या गेम खेलनी है, तो बेटा वो तो लड़कों की बात है, वो तो लड़के खेलते हैं। तो एक जनरली गेमिंग डिस्करेज तो होती है। अब मुझे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शो देखा है, तो शो देखो अभी बहुत लोगों ने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा है मेरे लिए तो वही बहुत है। उसमें काफियों ने अप्रिशिएट किया है। काफियों के सामने आप ये कहो कि मैं गेमों का शो कर रहा हूँ, तो देख भी लाइक अच्छा बेटा आप कर क्या रहे हो साथ? कौन है नहीं मैं अभी देख रही हूँ, मैं गेमों का शो कर रहा हूँ, तो देख भी लाइक अच्छा बेटा कर क्या रहे हो साथ? तो भाई मैं गेमों का शो करता हूँ यार मैं। हाँ yeah, it's a big deal. Right. हाँ, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, हाँ वेरी ट्रू। तो चैलेंज मिलता है बिल्कुल, लेकिन इन माय केस शुक्र है अल्लाह का मुझे नहीं मिला। ऑल्दो बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ही बात ये कि बेटा पढ़ लो, डिग्री करो, अच्छा पढ़ो, साथ जो मर्जी करो, जितनी मर्जी खेलो गेम में। Yeah, exactly. तो मेरे ख्याल में तरीका भी यही होना चाहिए। Right. और अभी भी सारी बातें बकवास होती हैं कि गेमें बच्चों को पढ़ाई से हटाती हैं, ये वो। इंसान का बच्चा बन के गेम खेलो ना और बाकी काम करो तो सब कुछ परफेक्ट है। ये बात हम नूर से पूछते हैं। नूर, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो गेम में खेल के, या do your parents give you a hard time? Not really, since I know how to balance it out, to be honest. Like पहले कभी कभार जैसे अम्मी को जब टोकने का दिल चाहता है तो टोक देती हैं कि वो लड़कियां गेम में नहीं खेलती, कि तुम लड़कियों वाली हरकतें की। वही ना, क्योंकि हमारे कल्चर में है नहीं इतना। कि अगर चलो देखो कि इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कल्चर, राइट, तो उनमें तुम सोचोगे कि बहुत जैसे इन अ मोर लाइक मीडिया सॉर्ट ऑफ वे कि वो लोग बहुत इन ट्यून थे। हम इतना नहीं है। वी आर ऑलवेज लाइक हैव बीन ट्रेडिशनली रिलीजियसली इन ट्यून्ड विद जो हम जिन चीज़ों में हम माने जाते हैं। दिस क्या कहें, मीडिया कल्चर इज रिलेटिवली न्यू टू अस। तो इसलिए मे बी क्योंकि आदत रही नहीं पहले दिन से, तो इसलिए हमें टोक पड़ती है। जैसे अब हमारी जनरेशन है, मतलब जो आप लोगों ने पहले भी वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ना अबाउट द होल लाइक एक्सेप्टेंस एंड लाइक द वायलेंस ऑफ वीडियो गेम्स, लाइक अब हमारी नई जनरेशन आ रही है ना,
हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यार चलो ये नई चीज़ है, इसमें जो ये हो रहा है लाइक वी शुड बी अवेयर कि इसमें क्या हो रहा है ताकि हम ये चीज़ें अवॉइड कर पाएं कि चूंकि अगर हम बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे होंगे हम कहेंगे यार हमें पता है तुम खेल रहे हो तो प्लीज लाइक अल्लाह के वास्ते ये सब ना करना एंड लाइक वी नो के चलो दिस इज अ पास टाइम ठीक है. I got a little bit of it growing up. When I was growing up, I mean, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इतना obsessive नहीं था गेमों के साथ. लेकिन very but इतना होता है कि you know comparisons for example, यार तुम्हारा पुप्पी का बेटा वो बास्केटबॉल खेलता है, हाँ यार ये बड़ा बैड सीन है यार, ये बड़ा बैड सीन है. वो तो ये करता है, तुम यहाँ बैठे हुए टाइम ज़ाया करते रहते हो, you know? हाँ अभी भाई जरा खुद ये बात सोचो, मैं तो मोटा भी हूँ, मेरा तो अच्छा खासा पेट निकला है, मैं कितनी सुनता हूँ. सारा दिन बेटा खाते हो या गेमें खेलते हो, सारा दिन बैठती हो तो गेमें खेलती हो तो पेट लटक जाता है, बाहर भागा करो. मैं कहा बाहर भाग के क्या करूँ भाई. यार लोग सेटिस्फाई नहीं होते, आप सूख जाओ तो लोग कहेंगे तुम सूख क्यों रहे हो, लोग मोटे हो जाओ मोटे क्यों, तो लाइक क्या क्या चाहते हो यार आप लोग. हाँ बड़ा परफेक्शनिस्ट किस्म का कल्चर है एक्चुअली. मैंने आई मीन अदर सोसाइटीज आर लाइक दिस टू, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना हमारा, या अमेरिका में भी ऐसे ही एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑफन टाइम्स मुझे लगता है कि बंदा पूछे जिसके स्टैंडर्ड आई है वो आप की हुंदा, वो चूड़ा हुंदा, जो जेन्युइन बात है. शाहरुख खान मुझे कहना या सलमान खान भाईजान आके कहें कि बेटा पतले हो जाओ, तो मैं कहूंगा यार भाईजान ने कहा है पतले होना बनता है. इधर तो करेले के मुंह वाला बंदा कह रहा होगा यार तेरा वेट किधर लिखा है. यार आपको क्या मसला है, तू वो पी के देख डिटॉक्स वाटर. बंदा आगे से उसको कह तेरी बहन बना रही है डिटॉक्स वाटर. नहीं अगर कोई अंकल वगैरह कहे ना तो उसको आप कुछ कह भी नहीं सकते. अगर कह भी दिया ना तो वो ऐसे कहते हैं, हाँ मतलब उनका जवाब ये होता है और तेरे ज़माने में तो मैं हट्टा कट्टा है कैसा मैं करना ना वो करना. तो तुम टॉक बैक भी नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव नो विजिबिलिटी इनटू देयर लाइफ बैक देन. अच्छा वैसे बंदा एक उनको बात क्या छोटी सी कि एंड से बुढ़ा ही होना ना, तुसी भी होते गए फायदा मैं भी हो जाना, खत्म बात. एग्जैक्टली. जितना मर्जी बिल्डर हो बंदा उसने बुढ़े तो होना ही, इवेंचुअली तो होना ही है है ना. हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है, वो सबको करना चाहिए. उसका एक स्टैंडर्ड होता है, अगर बंदा वो नहीं कर रहा तो फिर वो उसका अपना नुकसान है. नहीं एक बात ये होती है ना कि बंदा आपके फायदे के लिए कोई बात करता है, आपकी लाइक आउट ऑफ कंसर्न, वो अलग बात है. बिल्कुल. लेकिन वो जो हबीब जो आउट ऑफ कंसर्न बात करता है ना, वो सुन के पता भी चलता है यार कि ये बंदा बात कर रहा है भले के लिए कर रहा है. और एटलीस्ट मुझे पता है कि हमारी फैमिली पूरी लाहौरी है, एक्सटेंडेड फैमिली भी लाहौरी है. आई डोंट नो इफ इट हैज टू डू विद इट, बट बहुत ही यार जुगतबाजी बहुत होती है. Like Noor said, जो मर्जी कर लो, ज्यादा मोटा हो जाओ, ज्यादा पतले हो जाओ. People just tend to be insensitive, like, and they don't realize that. Yeah, and that happens a lot in like Desi culture, to be honest. They think they're like they are coming from the right place, to be honest, but like it doesn't fly with you. बस as long as बंदा पीठ पीछे बातें ना करे बाकी सब सही है. लेकिन जो पीठ पीछे बातें करता है उसका तो अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि जो गीबत करता है और जिसके बारे पे गीबत की जाती है उसको सवाब चले जाते हैं, जो गीबत करता है उसका गुनाह डबल होता है. तो वो अपना ही फायदा है अगर वो गीबत करता भी है. मैं तो कहता हूं कर ले भाई, बैठे बैठे सवाब मिल रहा है इजी सी. मुझे ये होता है कि चलो आप बोल रहे हो मेरे वेट के बारे में बकवास कर रहे हो, मेरे मुंह पे बोलो, ये नहीं कि पीठ पे जाकर लाइक ओ नूरी तो इतनी मोटी हो रही है ब्ला 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 ब्ला. लाइक भाई आपको बोलना है तो मुंह पे बोल दो, आई वुडंट माइंड, आई वुडंट केयर, लाइक डोंट डू दैट. मेरा तो ये सीन है कि एक दो दफा कोई बंदा कहना, तीसरी दफा मैं जुगत डालता हूँ, चौथी दफा मैं कोई बात डालता हूँ, पांचवी दफा फिर फड्डा हो जाता. यार आपको इतना क्यों लोग कहते हैं, तो बस वहां से निकल जाओ फिर अवॉइड कर लो. नहीं मैं तो ये नहीं, मैं ये तो वैसे ही मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये नहीं होता कि मुझे रोज यही कह रहे होते, तो वैसे जनरली एक बात कर रहा हूँ मैं कि कभी हो इस तरह. Yeah, I get you. So I usually like avoid these kind of people, to be honest. It's really annoying. Yeah, like आपको क्या मसला है, जैसे जी रही हूँ खुश हूँ, आप भी खुश रहो. बोलने दिया करो यार लोगों को, लोगों की बातों को ना कभी असर नहीं लेते. वंस यू उनकी बातों के असर में जब आप आ जाते हैं ना, वहां से सीन बैड हो जाता है. देखो जिसने बात करनी है उसने तो करनी है. मैं सिक्स पैक्स बना के सुबह रणवीर सिंह बन के डांस कर रहा हूँ, वो सारे के उसमें भी कोई नुक्स निकाल लेंगे कि डांस क्यों कर रहे हैं. वैसे ही मिसाल के तौर पर सही बात है यार, रणवीर सिंह जैसी बॉडी हो अभी तो डांस क्यों ना करूं मैं. So around this part we started talking about Red Dead Redemption 2 and the controversy surrounding that. Now, Red Dead Redemption 2, I don't know much about that game yet. I haven't played it yet, so I'm not aware of all the controversies going on. So this was a good moment for the others to pitch in. And the spotlight really. वो तो क्या बात है, वो तो भाई की फेवरेट गेम है. हाँ मैंने गेम खेली नहीं, तो भाई बात करेंगे अब. मुझे सिर्फ दो ही चीजें पता
उसमें जो controversial है थोड़ी बहुत. क्या? There's this whole like rape thing जिसमें आप क्या आर्थर नाम था, क्या नाम था अपने बंदे का? आर्थर मॉर्गन हमारे प्रोटेक्टर, आर्थर मॉर्गन. Yeah, he got raped. Well, and then there's the whole incest thing. उसकी तो I've also made an episode on it. And Incest there's thing so वाली. many episodes on it. There's so many. That's the thing that's like weird. Meaning the incest happens over and over, or नहीं, No, but it's that's a like one time thing. There's a lot of content का मतलब मेरे ख्याल में what Noor said, मुझे तो ये लगता है कि lot of content की तो यही बात होगी ना, एक ही लेवल है, सबने इसको कवर किया हुआ है. Although it's not a level, वो तो साइड वाली चीज है गेम में, लेकिन काफी लोगों ने इसको कवर किया है क्योंकि गेम का ऐसा है, ऐसी बातें करेंगे. I mean, the game has been like pretty much the biggest thing to come out in a few years. So why wouldn't you nitpick it? So, Right. बिल्कुल. been a long time. और Reddit में भी recently ये हुआ था कि a guy punched a feminist in the game, so they took his channel off. ठीक है ना? तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी. मेरा दोस्त है काशिफ भाई, वो कहता है यार बंटू तुमने वो देखा है लेटेस्ट न्यूज क्या है? मैं कहा क्या चल रहा है? कहता है यार वो एक ना फेमिनिस्ट का ग्रुप होता है रेडिट में. मैंने कहा ठीक है, फेमिनिस्ट वहां भी पहुंच गई है? कहता है हाँ. कहता है और एक यूट्यूबर ने ना उनके मुंह पे घुसून करा दिया, तो वहां से उसका चैनल उतार दिया. तो मैंने किस वजह से? अब मैं वही बताने लगा. वजह ये थी कि उसने फेमिनिस्ट की मुक्का मार दिया. मैं ये सोच रहा, मैंने कहा बहन, और रेडिट में आप अगले का दिमाग खोल देते हैं गोलियां मार मार के. यू कैन फीड पीपल टू क्रोकोडाइल्स मैन. ठीक है, आप उधर इंसेस्ट कपल है, उधर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और एक फेमिनिस्ट के मुंह पर मुक्का मारने से उसका चैनल उतार दिए. exactly यार, आप मतलब लड़कियों को किडनैप करके भाग जाते हो, लेकिन at the same time you also save them if you want to. मतलब आप in the end अब यही देख रहे हो, इतना सब कुछ हो रहा है. वही ना, It's so GTA stupid. में आप दुनिया का हर कुत्ती खाना कर सकते हो. मुझे समझ नहीं आई. फेमिनिस्ट को मुक्का, कैन यू रिपीट द स्टोरी अगेन? Wasn't मैं it a आपको bit बताता different as well? Punching was different, and there was one bit where he actually fed the game character to the crocodiles and stuff. तो सैफ देखो ना, गेम ने आपको टास्क नहीं दी कि आप फेमिनिस्ट को बांधो और क्रोकोडाइल को खिला दो. हाँ नहीं, अगर वो टास्क भी देती है ना, तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ गॉडडैम वीडियो गेम. ठीक है, कोई भी खेल के किसी फेमिनिस्ट को बांध के क्रोकोडाइल को नहीं खिलाएगा, इतना वेला कोई नहीं है. क्रोकोडाइल भी हम प्रीटी श्योर बड़े महंगे होंगे अगर खरीदे कोई. खैर ऑफ टॉपिक जा रहे हैं. तो वो स्टोरी ये थी. हाँ, सैफ की बात ठीक है, एक मुक्के वाला एपिसोड था, एक था बांध के फेमिनिस्ट को घसीटता हुआ ले गया था. लेकिन इन द एंड ऑफ द डे मैन, रेड डेड रॉकस्टार ने बनाई, रॉकस्टार ने ही ये चीज गेम में डाली, और रॉकस्टार क्या कुछ करता आ रहा है, तो किस बेस पे इस चीज को उन्होंने उसके यूट्यूब से उतार दिया. बहुत गलत बात थी. भाई तो प्लेयर की भी अपनी चॉइस ही होती है ना ये सब. ये तो आपकी बिल्कुल चॉइस बिल्कुल ना. हाँ, I would say that जो like जिसपे वीडियो बनाई थी, it's probably in bad taste. I mean, it's still at the other day, it's like a video game, right? So like you can do whatever you want. नहीं तो सर उसमें जो इतने बंदे मारते हैं वो भी तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ. It's like okay, so the main thing that's focused on, it's done in bad taste or whatever, right? But taking the video down, I think it's a bit too much. I mean, it's not like. And how do you know कि it's in bad taste? YouTube से बंदा ये पूछे. YouTube वैसे ही बड़ा पागल हुआ है आजकल. ओ यार, आजकल तो दुनिया ही पागल है. आप खड़े होकर किसी को, आप खड़े होकर वैसे ही अपने मजे में जा रहे हो, 5-6 लोग कह देंगे यार ये देखो पोटेंशियल रेपिस्ट जा रहा है. वो बंदा पूछे भाई मैं तो थानू कोई किया भी नहीं. इस तरह का सीन हुआ है आजकल तो दुनिया में. ये जनरली इट्स अ बिग जायंट स्नोफ्लेक. And like everyone says like, oh, freedom of choice, and like, you know, freedom of speech even. अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने डिफरेंट ओपिनियन सुना दिए थे, ਉਹਦੇ पीछे पै जाओ, है गलत. Exactly, भाई. तो फिर लोग मरना शुरू हो जाते हैं ना, अगर आपकी चॉइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ. ये बड़ा अच्छा नूर ने वर्ड यूज किया, लोग मरना शुरू हो जाते. बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, सही है, तुमने मुझे लाइक कुछ ठीक किया, अब मैं क्या तुम पे चढ़ जाऊंगी कि आपने मुझे क्यों ठीक किया, मैं तो सही हूँ. बेसिकली यही हो रहा है. अजीब, समझ ही नहीं आता. भाई आप गलत हो तो मान लो गलत हो. अगर तो बहुत ही गलत बात होगी तो मैं कह दूंगा कि भाई मैडम देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे आप चवले ना मारें प्लीज. गलत बात है. अगर मेरी रात को नहीं फर्क पड़ रहा होगा तो मैं कहूंगा भाई बोलती जाओ, मुझे तो पता ना सच क्या है. इजी सी. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, एक बात होती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बात होती है. उसका मतलब लगता है सब भूल गए, क्योंकि सबको आवाज मिल गई. जैसे हबीब ने कहा था, एवरीबॉडी इज गॉट अ वॉइस नाउ इन सोशल मीडिया. मसला यहाँ पे आता है कि आवाज़ वगैरह ठीक है, पीपल कैन आर्ग्यू ऑन द इंटरनेट, इट्स ऑल फाइन, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज बीच में आके अपना
मतलब रीइंफोर्स करना शुरू कर देती है ना कि नहीं ये ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये सारी वीडियोस उतार देंगे, या कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है, या नहीं यार वो ज्यादा मतलब when companies get political, that's when it gets. You should allow an open platform. That's what freedom of speech is, right? An open platform. Obviously, there's some things that are illegal. Obviously, you don't want things like कुछ internationally illegal चीजें हैं. बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बाकी तो it's an open world. अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो बल्कि इधर तक भी I mean ये थोड़ा it's probably an unpopular opinion. लेकिन अगर कोई इस्लाम के खिलाफ कोई वीडियो डाल के YouTube पे डाल देता है, right? अगर आपको ज्यादा ऑफेंसिव लगती है आप ना देखें, लेकिन कम से कम Exactly, हाँ. दैट स्टार्ट्स अ डिस्कशन कि अगर हम उसको ब्लॉक कर दें, अगर हम यूट्यूब को पिटिशन भेजें कि यार आप ये वीडियोस उतार दें, तो वो फिर हमें ज़्यादा इट रिफ्लेक्ट्स इवन वर्स ऑन अस एज मुस्लिम्स कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, नंबर 1, और नंबर 2 हम कॉन्वर्सेशन डिस्कशन रखना ही नहीं चाहते. तो इस हद तक यू शुड जस्ट अलाउ एन ओपन प्लेटफॉर्म. No, I suppose petition is like a right way to go with it, though. I feel like if you start, protesting and like start like I don't know, like attack the headquarters and stuff. यार उसमें देखो ना, सीधी सीधी बात है, अगर तो आपके रिलीजन को कोई बात करता है ना, अगर तो आपके रिलीजन पे कोई बात करता है, इन केस आर रिलीजन, आर डीरेस्ट रिलीजन, तो उसका ये सीन है कि अगर किसी ने बात की है तो अलबत्ता आप एक तो उसको वहीं पर रोक दो, आप उस चीज को बाइकआउट कर दो और आप उसकी तरफ जाओ ही ना, क्योंकि मेरे नजर में रिलीजन से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है. लेट्स से एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब ने कोई गलत बात अपलोड की है, आप यूट्यूब बाइकआउट कर दो, खत्म बात, छोड़ दो यूट्यूब. People Yeah. like they have a hard time looking away, basically. I don't know why they have to be vocal. Being vocal is fine, but like actually like start taking like extreme actions. That's where you mess up. I suppose like you should act with your mind more rather than your heart. कि कुछ लोग ना जज्बाती हाँ कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, but they're not helping themselves nor other people because they're just like speaking random stuff and not like actual things that can help your like subject matter out. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे बंटू ने कोई वीडियो आगे की सही है, किसी और बंदे ने उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन या कुछ दिया. अब आप क्या करोगे? आप या मतलब ड्रामा आगे लाना चाहोगे बिकॉज यू वांट टू बी फेमस, और यू जस्ट वांट टू एक्ट मैच्योरली, लाइक इग्नोर इट या शट इट डाउन इन अ स्मार्ट वे. नूर उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है ना. जिस तरह नूर ने ये बात की है ना कि बंटू कोई वीडियो बनाता है और कोई इसको किसी और तरीके से परसीव करता है. देखो रेस्टोरेंट होता है, कैफे होता है, ठीक है, उस पर एक लड़का बैठा हुआ लेट से, और वो अपनी कॉफी पी रहा, सिगरेट पी रहा, चिल कर रहा. आप उसकी तस्वीर खींच लें, लेट से आप एक लड़की हैं, ठीक है, आप उसकी तस्वीर खींच लें, वो बैठा हुआ चिल कर रहा है, ठीक है. जब आप उसकी तस्वीरें खींची हैं, उसको नहीं पता, क्या पता आप उसकी तस्वीरें खींची हुई वो आपकी तरफ देख ले और आप उसको आपकी तरफ देखते हुए तस्वीर खींच लें. यू अपलोड इट एंड मेक अ फेक स्टोरी कि भैया हरास कर रहा था, ये शेयरिंग कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था. मजाक के अलावा आप ये करके देखें, 70-100 लोग उस बंदे को जलील करने उतर आएंगे. कोई एक बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है. That's basically you entered like the white knight stuff though, which is like a completely different thing. बहुत ही गंदे किस्म के यार हम टाइम पीरियड में रहे. नो वन इज सेफ. Yeah, you can control, traditionally you can control a country to work a certain way. लेकिन इंटरनेट इतना खुला है. बिल्कुल. उसमें हबीब भाई लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. लोग भी. Of course, और इंटरनेट है ही लोग ना. जनरली लोग काफी लोग हैं. एक्चुअली बात यह है कि लोग इंटरनेट पे ना, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, लाइक वीडियो गेम when you're discussing with people and you don't reveal your identity, you're going to be a lot more open, you're going to curse a lot more, उसकी माँ बहन कर दो या जो भी, आप अपनी असलियत आप लोगों को दिखाएंगे. जबकि in real life people show a filtered version of themselves कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ. Oh, I do everything. हबीब तो आज फुल शायरी के मूड में है. Yeah, no. हो हबीब भाई, ये किधर से बातें निकालनी है इतनी डीप. हाँ नहीं बस सोची तो again going back to like YouTube for example, मेरे लिए in the internet and YouTube and things like that थोड़े बहुत rules होने चाहिए, but outside of that it's just a platform. अगर किसी को like बंटू ने बात की, अगर कोई you feel a personal attack, of course you can boycott, you can stop the program. लेकिन अब जिस तरह कोई feminist का issue हो जाता है, right? Just because you don't do something that feminist thing is supposed to be done as a reaction to something offensive, that doesn't make you anti-feminist. आजकल हम इतनी अजीब दुनिया में रह रहे हैं कि अगर आप मिडिल में हो तो आप फिर भी बुरे हो.
अगर आप कहते हो कि यार मैं आपकी सपोर्ट में हूँ लेकिन I'm not going to go out of the way to boycott this thing. नहीं आप anti मुसलमान हो गए यार आप anti feminist हो गए whatever. It's like damned if you do, damned if you don't. Basically, that Exactly. Yeah, like either you're with me or either you're just gonna die. It's that kind of mentality जो आजकल चल रही है कि टीम पिक करो. अगर आप टीम ने पिक करा तो भाई आप बीच में ही मर जाओगे. बाकी आपको मार देंगे लोग. Even asking questions is like the ultimate. I don't know. It's kind of like blasphemy nowadays. Like, no, exactly. कोई सवाल नहीं पूछना आपने. Yeah. यार डर लगता है कि मतलब वही है ना कि बंदा अफर हो जाएगा. अब वो समझ नहीं आता कि आप किस तरह अपना सवाल पूछो किसी और से कि मतलब बंदे को बुरा ना लगे और आपका पॉइंट आगे चला जाए. Like it's really मुश्किल. Yeah. बड़े अजीब से टर्म्स शुरू हो गए हैं. Cultural appropriation. You're like you're using your position of power, or like अजीब से concept of phrases that I haven't heard. Hierarchies, like yeah. and this is really weird one जो hierarchies की तरह anti क्या था अजीब सा. Yeah. It just had to do with the place of power and like उसका scale and shit like that. It was really weird. Yeah. अब ये नहीं कि हम ये पॉडकास्ट पे इन चीज़ों के बारे में बात करें तो हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं. Necessarily that's not the case. Oftentimes I agree with what's being discussed. लेकिन इतनी development हो गई है in terms of like the different ways that we can be outraged over the last 5 years. कि यार नहीं आपको पता है आपको इस चीज़ पे भी गुस्सा आना चाहिए था. आपने पिछले 50-100 साल गुस्सा नहीं किया लेकिन अब आना चाहिए. Like और अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे तो आप गलत हैं. ये है वो है. अजीब सा वक्त आ गया. In the last 5 years we're supposed to change so much. And now we're just disintegrating. Very, very big snowflake culture nowadays. I agree. Softy. And this is coming from somebody. I'm relatively liberal. I think all of you are probably more on the liberal side too. Hopefully. कोई हद भी होती है. I'd like to think I am. लिबरल किस तरह हबीब भाई आप लिबरल की क्या वो रखती हैं डेफिनेशन? Open-mindedness, isn't it? Open-mindedness. लेकिन बंटू ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. The definition of liberal is changing so quickly that we don't even know what it means right now. It's basically subjective now. It's like, for example, for me, it's like अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछो मैं गुस्सा नहीं होंगी and I'll try to like reply to it without being like too angry about it. Yeah, basically to a sense that being conservative today is very similar to I think being liberal 10 years ago. वो जो scale है ना आपका आहिस्ता-आहिस्ता shift हो जा रहा है. So it means different things to different people, and it's just changing with time a lot too. टाइम ने तो यार जो सीधी बात है ना बर्बादी फेर के रखती है इसकी. जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है दुनिया में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. मुझे तो लगता है एक टाइम आएगा सांस लेना भी जो है ना उस पर भी लोग ऑफेंड होंगे. आपको पता है आप जरासीम मारते हैं. You're not a vegetarian. है ना? if you breathe, you're killing living पता things. नहीं है कल को 5-6 ढक्कन के बच्चे बाहर आए हो प्ले कार्ड लेके भाई जरासीमों की जिंदगियों को भी जो है ना मतलब germs lives matter. Germ lives matter. Oh my god. You never know my friend. You never know. यार यहाँ पे देखो अभी वो वाली गुफ्तगू नहीं शुरू की वो सोल्जर 76 को गे बना दिया. Oh god. Yeah, I didn't even know that honestly. I love Overwatch, लेकिन मैंने काफी अरसे से खेली नहीं and I don't really follow the cutscenes. अच्छा मुझे तो Overwatch पसंद नहीं है लेकिन इस बात की बात तो ना मुझे काफी कुछ पसंद नहीं है यार. What happened? How did Do they you reveal? remember when the Bastet thing came out? Do you remember that? What? The Bastet. No, I don't. I didn't watch those clips at all, so I don't know about the stories. It was a comic, like more of a writing thingy. Okay, then what happened? Okay, so basically उसमें बस एक ही सीन था. I think आखिर का था जिसमें सोल्जर ने कोई पिक्चर निकाली हुई होती नहीं या आना और सोल्जर मिलके कोई बातें ट्रिप डाउन मेमोरी लेन टाइप कुछ कर रहे थे. And it was either a picture, I don't remember something, जिसमें soldier ने It was a picture, किसी बंदे के साथ खड़ा हुआ था. And then it was something like if he's married, he's gonna be happy now. He's like more than he was with me. It was something like that. And everyone kind of freaked out. And then क्या कहते हैं, Blizzard went like, oh yeah, he's gay. They basically confirmed it. Wasn't too in the face though, like other stuff basically. Kind of like a a nod, not a nod, but like it was just there, not in the face like other things. And exactly. To be honest, I didn't mind it. Like, but कोका तुम्हें एकदम से सडन नहीं लगा था? मुझे पता नहीं क्यों सडन लगा था. क्या चीज वो सोल्जर?
हाँ वो Like, do they सोल्जर have का वो a? वाला They पार्ट basically had a roundtable discussion, and they just like, okay, let's just tweet out that Soldier 77 is gay. Yeah. Okay. So Soldier was like injured तो आना बस बैठी हुई थी दोनों बातें कर रहे थे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे and then Sure. there's this picture like suddenly this picture and A then like soldier with a guy. यार yeah दुनिया में इतना Okay. आप है, सॉरी टू से, मेरा दिल नहीं करता ऐसे गलत वर्ड यूज करने का, लेकिन no. आई बिलीव कि ये वो वर्ड है जिससे मैं ये चीज एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। Yeah. उसमें हबीबा अब आप ये बात सुनते जाओ जरा यार, अच्छा. बैठे बैठे पता नहीं ये कौन सी तरह के लोग हैं, इनके दिमागों में कौन से कीड़े घुसे हुए हैं, ये पिटिशन डाल दी है कि जी मेक जोकर गे, एंड दैट फकिंग पिटिशन हैज सो मेनी सिग्नेचर्स। बंदा पूछे यार उसको गे बना के क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा तुम लोग। उस पिटिशन के बाद ही हुए No, he's talking about different thing. He's talking about different oh things. okay I was like We're talking about Joker from Batman, Joker from Batman. Okay. यार जोकर का तो उसके साथ सीन था. What's her name? Harley Quinn. Yeah, Harley Quinn. Yeah. तो अब उसको क्या कैंसिल करके who's he gonna be with Two-Face? Stupid बात है। Interesting. अच्छा उसके बाद हाँ, उसके बाद नई बगैरती शुरू की है कि जी आप हर चीज में एक आधा लेस्बियन, एक आधा गे, एक आधा ट्रांसजेंडर वाड़ दें। बंदा पूछे क्यों वाड़ दे भाई, क्यों वाड़ दे। हर अब देखो ना बैक इन द डे 80s में 90s में देखो अल्फा मेल कैरेक्टर्स जबरदस्त कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर्स जबरदस्त किस्म के। आजकल के मॉडर्न टीवी में देखो यू फील के यार ये सब कुछ बड़ा फोर्स्ड है, ये सब कुछ बड़ा फेक है। बैठे बैठे कैरेक्टर आएगा उस पे गे बना देंगे, फायदा क्या, साफ पता चल रहा है ड्रामा है। मतलब ये मतलब यार वही बात है ना, बात तो सारी वही आके खत्म होती है कि सब कुछ बहुत स्नोफ्लेक की हो, हर कोई हर किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। I've been raised in the US, right? तो यहाँ पे काफी obviously I've been raised in a way that I have to be accepting of people and you know I understand it. हर बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है, कई मसले होते हैं, कई you know चीजें जिनके साथ हम agree नहीं करते। चलो ठीक है, fine. You know I don't even have a problem with them declaring Soldier 77 है ना? 76 sorry. Soldier 76. Okay, they declared him gay. अगर कर दिया चलो ठीक है, I'm not going to be outraged or anything. जिस तरह अब दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल ही पिच फोर्क्स लेके आ जाते हैं। हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरा कौन सा दोस्त था वो। राइट लेकिन बस ये है कि जो बंटू ने एक पॉइंट दिया जिसके साथ मैं एग्री करता हूँ कम से कम, वो ये है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में we start representing like 2% of the population, 1% of the population, 3%, you know, in every single thing by force. ये मतलब ज़रूरी नहीं है you know in order to create a culture of अब मैं ये complain नहीं कर रहा यार, there's no Pakistani character in Overwatch. There's no Pakistani character in Red Dead Redemption. Dalo. Some people probably complain about that at some point. Like I haven't seen that yet, but yeah, eventually you'll probably start seeing. Noor, wasn't your sister kind of do something like that? huh Giving ideas to Blizzard for like a Pakistani character. oh it was my sister oh yeah no it was my sister. She was like oh I'm making a it's like kind of character sketch for a Pakistani character and apparently she got like I remember a lot of shit for it, like oh there shouldn't be a Pakistani character and there was someone who was like oh for India versus Pakistan ka scene ho jayega, you shouldn't do that and blah blah blah. Like she got a lot of shit for it, like because she even posted the whole thing like online on their forums. Yeah तो उसको बहुत बैकलैश मिला था उस बात पर। Marvel made, I think, a Pakistani हाँ, superhero. और उसके आप कभी कमेंट पढ़ो तो इतनी टॉक्सिक है नीचे, टॉक्सिक। Exactly. So there's some, yeah, there's issues there too. बस ये है कि यहाँ पे ये एक भी कोई फिल्म बन जाए ना in Hollywood that has majority white cast, that becomes a problem too. और हालांकि मैं गोरा भी नहीं हूँ, I start sympathizing with गोरे यार। बड़ी जबरदस्त बात है इसकी ना, ये जो हबीब ने बात की है कि अमेरिका में फिल्म में सारे गोरे हैं तो उस पर भी मसला है यार। अभी फिल्म में ही ब्लैक पैंथर, ठीक है, उसको ऑस्कर दे दिया, वो तो बगैरती थी, ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब ब्लैक पैंथर एक फिल्म थी, अब ये मेरा जाती ख्याल भी हो सकता है, ठीक है, अभी तो मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे जरूर बताना कि क्या इसके बारे पे आप लोगों को क्या लगता है। ब्लैक पैंथर में सारे काले लोग थे, उस फिल्म में कुछ खास नहीं था, ये चीज निकाल के इट वाज एन ऑल ब्लैक पीपल्स फिल्म, ठीक है ना, मोस्टली तो उस फिल्म में कुछ खास नहीं था यार, ठीक है, जेनेरिक सुपर हीरो फिल्म थी, सुपर हीरो आया, ठाठैया हुआ, चिल हो गया, ठीक है। मुझे जो लगता है उस फिल्म को इतना सबने रेट किया, एक्सीलेंट उसको कमेंट्स दिए, उसको इतना प्रेज किया, व्हाट आई थॉट वाज कि सारे लोग डर गए थे इन द फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट एज रेसिस्ट,
इसीलिए उस फिल्म को जो है वो इतना जरूरत से ज्यादा क्या कहते हैं हिट बना दी है। Right? यहाँ पे थोड़ा था, there was a little push for it. इस डर से कि रेसिस्ट ना हमें Yeah. कॉल आउट कर दिया जाए तो उस फिल्म की तारीफें करी जो कुत्ते की तरह। Yeah, there was a हालांकि big आप push तीनों from ने critics, I आप तीनों ने think. ब्लैक पैंथर देखी है? Yeah. देखिए, हाँ, yeah. मैंने नहीं ठीक देखी। है, आप तीनों मुझे सही सही बताओ। नूर आप बताओ 10 में से आप कितने देंगी उसको ब्लैक पैंथर? I haven't watched it yet, so I can't say अच्छा वेरी anything. गुड। ओ यू हैवंट वॉच्ड Very दैट। 10 में से कितने दोगे नेट उसको? Black Panther, right? So I'm a huge like comic book nerd, so I'd say I'd give it like 8.5 or a 9. I really like that. अबीब? I would give it, okay, I actually enjoyed the movie. I would give it a 7 or 8. Lekin हाँ, I agree that it was, I don't think it was a $1 billion movie. I think it was a good superhero movie. It was, in my personal opinion, it is overrated and like it's like okay, good for like all the representation stuff. सीधी सीधी बात है यार। मैं तो बाहर सिगरेट पी रहा था खड़ा होकर, मैं कहा कि बोरिंग फिल्म है। अंदर आया वापस देखी, मैं तो उसको सीधे सीधे 6 दूंगा। अच्छी फिल्म थी, मार्वल की फिल्म थी, ओवररेटेड। Funny enough, मुझे सिर्फ उसका एक सीन का पता है। मुझे इसका सिर्फ एक सीन का पता है, cause like we were in some art and society class, तो सर ने ना वो बात कर रहे थे कि how racism plays in cinemas and blah blah blah. तो उसमें एक सीन था जिसमें they go into this like museum, तो उसमें I don't know कि कौन से पुराने like there were these masks and stuff like that जो वहाँ पर exhibit में थे. And there's this dude who goes meets the curator and like हाँ वो कहता कि जी ये हमारे लिए आपने उठा के रखी। या आप लोगों ने हमसे चोरी किया है तो फिर हम so that was kind of interesting कि मतलब कि यार ये इस पॉइंट पे भी उन्होंने ये चलो ठीक किया कि जिस जमाने में गोरे आके हमसे चीजें चोरी करके ले जाते थे. So I actually like that part. इस सब की वजह से ना बात पता क्या है, चीजों में से मजा निकल गया सारा। 80s उठा के देखो, 90s उठा के देखो, इवन अर्ली 2000s भी, और फिर 60s 70s 40s 30s की एंटरटेनमेंट भी। यू विल सी सो मेनी कूल थिंग्स, ओरिजिनल आइडियाज, एक से बढ़ के एक, बी इट खतरनाक, बी इट गुड, बी इट नेगेटिव, बी इट पॉजिटिव, हर चीज इतनी अच्छी मिलेगी और डन टू द फुलेस्ट किस्म की। पता नहीं ये वर्ड भी है या नहीं, लेकिन पूरा पूरा यू नो कि यार ये चीज 100% की हुई है। बी इट बैड बी इट गुड, टीवी पे ठीक है ना, मेटल म्यूजिक था उसमें, हर चीज एक्सट्रीम थी, फिल्म्स थी उसमें हर चीज एक्सट्रीम थी। अब तो चीजों में से एंटरटेनमेंट में से मजा ही निकल गया, क्योंकि जो भी आइडिया है वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही मर जाता है। अब मैं और अभी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ट्रिपल ए फिल्म का, जैसे सिनेमाज में लगना है, उसमें ट्रिपल ए एक्टर्स हैं, ब्लॉकबस्टर स्टार्स, हम 100 पॉइंट्स लिखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस और ये स्नोफ्लेक की दुनिया और ये जो आजकल के जो रूल्स हैं दुनिया के, सोशल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो 100 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट बच जाएंगे पीछे। उस चीज ने सारी दुनिया से मजा ही निकाल दी है। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। म्यूजिक में अब वो वायलेंस नहीं रहा, म्यूजिक में अब वो कंट्रोवर्सी नहीं रही, म्यूजिक में अब वो बदतमीजी नहीं रही, और वो खतरनाक लिरिक्स नहीं रहे। फिल्मों में अब आप वो सीन नहीं देख सकते, टीवी शोज पे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को एल्वायरा का पता है? किसका? Sorry? एल्वायरा, एल्वायरा No. मिस्ट्रेस ऑफ द डार्क। Elvira? No, I'm not. No. No. यार बड़े बच्चे हो तुम सारे यार। Wow. अच्छा, एल्वायरा का सीन ये था कि एल्वायरा का एक शो आता था 80s में आई बिलीव। वो बहुत ही सेक्सी किस्म की एक विच थी, ठीक है ठीक है, और बेसिकली व्हाट दे वुड सेल वाज हर लेग्स एंड हर बूब्स, एंड शी वुड मेक जोक्स, शी वुड टेल हॉरर स्टोरीज एंड ऑल। उस तरह की चीजें, दोस थिंग्स वर लव्ड, आइकॉन्स बनते थे। और ये ऐसे आइकॉन है कि लोगों ने अपने आप पे उन लोगों को टैटू बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो ये लेजेंड्स है जो इनग्रेव्ड है, मतलब लोग मर जाएंगे, ये चीजें कभी भी जो है वो खत्म नहीं होंगी। अब तो मैंने देखा यार ऐसी चीजें भी नहीं बनती। आजकल के दौर पे एल्वायरा होता तो सबसे पहले उसके डायरेक्टर को चंडे मारते कि तुमने सेक्सुअलाइज किया, तुमने गलत कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो पता क्या, तो वो है जो चीजों मजा ही खत्म हो गया। It's weird. Yeah, funny enough, like okay, so there's this one thing I read in art and society class. It was about how the male gaze goes on women, especially in cinema. कि सिनेमा में पुराने जमाने में इतना वो क्या कहते हैं एक फीमेल बॉडी को इतना एम्फसाइज करते थे क्योंकि उस जमाने में कि जो मर्दों की तादाद थी ना जो सिनेमा हॉल में होती थी वो ज्यादा होती थी बनिस्बत आंटियों के. So that's why they would like portray women such as like big boobs and like and now
अब चीज़ें इक्वल स्केल पे आ रहे हैं, सो दैट्स वाई कि वो इतना मतलब लोगों में अवेयरनेस आ गई कि, और आंटियों भी क्योंकि अब मर्दों के साथ बैठी होती है सिनेमा हॉल्स में, so that's why they're trying to like kind of calm down the whole thing क्योंकि obviously उनको तो अपनी मूवी बिकवानी है। नहीं यार, मेरे नजर में तो नूर ये बड़ी, मेरी नजर में तो गलत बात है, क्योंकि देखो ना, अब आप लोग ना, अभी आपने जैसा बताया ना कि आपने वो अलवारा का शो देखा नहीं है, कभी दोबारा इंशाल्लाह पॉडकास्ट हुई तो फिर ये बात दोबारा करेंगे। अलवारा का जब आप शो देखेंगे ना, तो फिर मैं नूर से ये वाली स्टेटमेंट उससे कहूंगा कि नाउ डू यू एग्री विद व्हाट यू सेड। Funny enough, it's not like I'm disagreeing with it. It's like honestly, I don't give a कि लड़की क्या कर रही है, because this वही बात है ना। हाँ, लेकिन चीजें खत्म हो गई यार अब। जैसे वो क्या नाम था, कौन सी गेम थी उसमें जो क्वाइट थी? Metal Gear Solid. हाँ, बैटल गेयर सॉलिड। वो हाँ, क्या Metal थी Gear Solid। बेसिकली उसका वो याद है एक सीन जिसमें वो बारिश हो रही होती है, वो लोट पोट रहती है जमीन पे। ये मेटल गियर 5 की बात हुई है ना? जी जी। फैंटम, हाँ। Phantom. याद, अब ना आप तीनों एक बात याद रखना, अब बस तीनों एक बात याद रखना, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमें कोई ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो अगले 100 साल तक लोग याद करेंगे, देखना कभी भी नहीं मिलेगा। Oh, that's a different argument though. That's probably because people just don't like to be creative and just like rehash whatever's come before. नहीं ना, उसमें तो सैफ बात तो बड़ी जबरदस्त की है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ प्रोड्यूसर्स क्रिएटर्स आर लेजी, लेकिन फिर वही बात आती है रिस्ट्रिक्शन वाली। और they just want to jump on popular opinions कि जो चीज चल रही है वो हमारे लिए भी। बैंड वैगनिंग, हाँ बैंड वैगनिंग तो वैसे ही अब बहुत होगी। हाँ, बैंड वैगनिंग हैज कॉज्ड लॉट ऑफ डेथ्स अच्छी चीजों की। बैटल रॉयल। मैं वही कहने लगा था। अब आप ये देखें कि why, if I can give an example here, Nike for example, right? They pulled that stunt with Colin Kaepernick here. जो कई लोगों को पसंद नहीं आया. They ran an ad with Colin Kaepernick in it, जो national anthem के लिए नहीं खड़ा होता, right? From Nike's perspective, and I work for a company too, right? So मैं काफ़ी चीज़ों ये डेटा वगैरह को मैं समझता हूँ. Nike ने अच्छी बड़ी एनालिसिस की इस इश्तिहार को एयर करने से पहले, कितने कस्टमर्स हम लूज करेंगे इसकी वजह से और कितने कस्टमर्स हम गेन करेंगे. And then at the end of the day, they determined that, well, we'll actually gain more customers because they're targeting the young market, or younger, the younger kid, they're more liberal in that aspect. They don't really care. They're going to buy more shoes. Actually, they're going to support it. So companies, they don't really, they're not in there because they actually care. ये Gillette ने जो हरकत की कुछ हफ्ते पहले, they don't do that because they care. They do that because they're trying to appeal to a certain demographic market. They're trying to make money. और लोग बेवकूफों की तरह. हाँ, ये बात असल में मुझे पता क्या लगता है, मैं बड़ा गुस्सा हुआ था, मुझे देख के वो बड़ा बुरा लगा था जिलेट का एड और सारा कुछ। मैंने भी फेसबुक पे इमोशनल होकर बड़े पोस्ट डाले, ओए गलत हो गया ये वो, लेकिन थोड़े से बाद मैंने एक बात सोची, मैंने कहा यार जिलेट ने ना तो मर्दों की साइड लेनी है ना मर्दों के खिलाफ होना, उन्होंने एक चीज निकाली जिसने आग लगा दी, सारे उस पर पड़ गए, जिलेट बिकेम दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, खत्म बात, जिलेट के पैसे पूरे। आपने जिलेट को कह दिया वेरी गुड, या आपने जिलेट को कह दिया बहुत बुरा, जिलेट का तो फायदा है। वो तो बैठ के हंस रहे हैं, एग्जैक्टली, वो बैठ के हंस रहे हैं, दे आर लाइक वाचिंग द तमाशा, एग्जैक्टली, उनको तो मजा आ रहा है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। या ये चीजों पे टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने इविल डेड मूवी देखी भी है यार? I've seen the original one. Right. हाँ, काफी वर्जन्स आई। इविल डेड ओरिजिनल देखी भी है? I think I have. I forgot it. जिसमें the tree comes alive and the roots basically attack a woman. Oh yeah, that scene. Yeah, I remember that scene. वो अब देखो ना, अब सैफ इमेजिन करो कि वही सीन के एक रूट जो है वो चलते हुए एक औरत की टांगों के अंदर, मतलब समझ जाओ किधर चली जाती है, ठीक है? Yeah. इमेजिन दैट कि अब हमने इविल डेड आज के दौर पे लिखी है और हमने वो सीन डायरेक्ट की है, हमारे साथ क्या होगा? I mean, that's horror though. That kind of flies, to be honest. That would be fine. I'm pretty sure. वो आप हो ना, सिर्फ अद्दी अवाम ने कहना कि भाई इनको बैन कर दो, इनको कैंसिल कर दो, इन्होंने एक औरत पे ऐसे सीन डाले, या वो किसी तरह सेंसर ही कर देंगे वो ज्यादा से ज्यादा। वही ना यार, क्रिएटिविटी मर गई है यार, मतलब क्विंटन टैरेंटिनो टाइप सीन। आए हाय यार, मैं बहुत दुखी हूँ यार, बस बहुत दुखी। I was actually even talking about this with my sister regarding cartoons. जो हमारे ज़माने के cartoons थे, the ones we grew up with. अब तो लगता है कार्टून में भी ये होगा कोई एक आधा बच्चा। वो बेहतर होगा। Steven Universe. Really? ਹੁਣ ਅਸੀਂ टॉम एंड जेरी बनाने ने, उसे टॉम ਨੂੰ गे बना। Steven is gay?
No. I think some characters are like, हाँ, cause like अभी तो वो उनका officially it's Ruby and Sapphire, right? Mm-hmm. It's like a उनका तो diamond. पक्का. Oh, really? Okay. Sapphire and Pearl. नहीं लोग Sapphire Garnet. and Ruby वो जो Garnet बनते ना दोनों मिलके Uh-huh. Yeah. उन दोनों की तो marriage भी हुई थी. It was kind of cute. Wow. But नहीं वो बात अलग है. It's just like पुराने cartoons जिसके साथ मैं grow up हूँ. SpongeBob, Hey Okay. Arnold, the Okay. Rugrats. नहीं. I watch reruns of that with my sister sometimes. And मैं कई बार उसको पूछता हूँ यार that joke they just dropped was meant for like 7-8-year-old kids, but adults get it in a different yeah. way. mhm. It's so funny. हाँ, लेकिन अगर आज के ज़माने में आप ऐसी कोई joke drop करें, oh my god. तो बेटा वो कार्टून कैंसिल हो चुके होते, उनके डायरेक्टर को चढ़ने पड़ रही होती। तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपने गे कैरेक्टर्स डालने कार्टून में, चलो मेरी तरफ से ठीक है, लेकिन फिर आप ये पुरानी जो हमारे पुराने जो स्टैंडर्ड्स है, कम से कम उनको तो हबीब भाई फायदा क्या है जब एक चीज है जो बिल्कुल सही चल रही है, क्यों उस पे के का ठप्पा लगा बिला वजह। If it comes from a story perspective and like if it's like natural, that's obviously fine. हाँ चलो कोई स्टोरी डाल दो, yeah. कोई स्टोरी डाल दो कि दो बंदे गे थे और उनका स्टोरी से लिंक था तो गे थे, ठीक है समझ आती है गे थे, स्टोरी में दो बंदों को आपस में एक दूसरे पे चढ़े हुए दिखाना तो ठीक है। उन सीधा बंदा अब कहते हैं कि जी जेम्स बॉन्ड को क्या कहते हैं गे दिखाना, अब बंदा पूछे बैटमैन को काला बना रहे हैं, जेम्स बॉन्ड को गे बना रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सुपरमैन को सर जी सुपरमैन को काला बनाना है। मैं तो Superman, I thought it was काला Batman. नहीं बना, सुपरमैन नहीं सुपरमैन को बना रहे No, it was rumored that they might get Michael B. Jordan to play Superman. It was a rumor though. किलमॉन्गर। Yeah. मेरे नजर में भाईजान अगर सुपरमैन काला बनाना ना तो फिर ब्लैक पैंथर गोरा बनाओ, मजा आया यार। बल्कि किसी पठान नो ब्लैक पैंथर बनाओ। अच्छा वैसे मजे की बात है फिर वही बात आ गई है। अब ये जोक था फनी, लोग हंसते हैं इस बात को सुन के, आप लोग भी तो ऐसे ही हो ना। तुम सिनेमा में फिल्म बन रही हो वो कहेंगे कि जोक बड़ा ऑफेंसिव था, पठान लाइव्स मैटर, उंगली लाइव्स मैटर, हाथ ऊपर लाइव्स मैटर, तो भाई ये बंद कर दो। चलो यार ये टॉपिक निकल आए इससे भाई पे दुखी हो पॉलिटिकल जाएगा। हो गई है डिस्कशन। Yeah, like it strayed away from like the gaming expert a lot actually. वही ना, आप गेमिंग से शुरू हुए थे, कितने आ गए हो, पठाना थे आ गए। That's the ending of this part. We'll continue the discussion in part 2, part B, which is a more lighthearted, gaming-focused piece of this podcast episode. We'll see you there.